Hormonal control coordination, that last subtopics are left. I would like to complete it today. Hormonal control coordinations. Today I would like to start about the adrenal gland. Clear? Then after adrenal gland, then we will see about the last thyroid and parathyroid. Already I have cleared your additional endocrine glands. Already I have taught you about the additional, many endocrine glands also finished, that is thyroid and that is the pituitary and hypothalamus. So just some subtopics are remain left that will going to be finished now. So ready? Now we will see hormonal control coordination subtopic, that is known as adrenal gland. So my dear students, I have given some DPP about the adrenal gland and also about the topics and also test questions I have given you and also DPP. You will get it on evening time. Selected questions. So adrenal gland, that divided by two parts: adrenal cortex and adrenal medulla. Adrenal cortex and adrenal medulla. My dear friends, adrenal cortex, that is the outer part, adrenal medulla is the inner part. See the adrenal gland, that is located. Location पूछता है. Location. Adrenal gland is located on the top part of the kidney. Write down. Adrenal gland, adrenal cortex, adrenal medulla. Adrenal gland is located on the top part of the kidney. See the kidney. Is the kidney. Adrenal gland is located on the top part of the kidney. See adrenal gland. That is adrenal gland. This is adrenal cortex. This is adrenal medulla. Adrenal medulla. Clear? Adrenal cortex and adrenal medulla, that is the adrenal gland. That is known as adrenal gland. Yeah. So adrenal cortex and adrenal medulla combine together and form adrenal gland. Adrenal cortex outer portion, adrenal medulla inner portion. adrenal cortex जो है ये आउटर जोन में रहेगा, adrenal medulla जो है इनर जोन में रहेगा. ठीक है. सी cortex जो है आउटर जोन में, medulla जो है इनर जोन में. ठीक है. cortex ये ऑक्युपाई करेगा 80% एंड medulla ऑक्युपाई करेगा 20%. medulla सबसे छोटा पार्ट है. medulla सबसे छोटा पार्ट है. क्लियर? medulla सबसे छोटा पार्ट है 20%. cortex बड़ा है 80%. तो adrenal cortex सबसे बड़ा पार्ट होता है. adrenal medulla सबसे छोटा पार्ट है. किडनी का ऊपर है, ये किडनी है, किडनी का ऊपर रहेगा adrenal gland. So adrenal gland is known as suprarenal gland. That is known as adrenal gland को, adrenal gland is known as suprarenal gland. Adrenal gland is known as
It is known as suprarenal gland. Why it is known as suprarenal gland? उसको सुप्रारिनल कहते हैं. सुप्रा मीन्स रिनल मीन्स किडनी, रिनल मीन्स किडनी, सुप्रा किडनी का ऊपरी भाग, सुप्रा मीन्स ऊपर रहेगा, किडनी का ऊपर रहेगा. व्हिच इज नोन एज सुप्रारिनल? अड्रिनल. क्वेश्चन आएगा व्हिच इज सुप्रारिनल? अड्रिनल. Why it is known as suprarenal? It is located on the top part of the kidney. Top part, किडनी का टॉप पार्ट में, किडनी का ऊपरी रहेगा. इट इज लोकेटेड ऑन द टॉप. आड्रिनल ग्लैंड को सुप्रारिनल कहते हैं. इट इज सुप्रारिनल ग्लैंड. आड्रिनल ग्लैंड इज नोन एज सुप्रारिनल. क्यों कहेंगे? सुप्रा मीन्स क्या है? ऊपरी, ऊपर रहेगा. रिनल मीन्स किडनी, किडनी ऊपर रहले सेटा को हमें सुप्रारिनल कहबा. किडनी का ऊपर रहेगा ना, किडनी का ऊपर रहेगा तो सुप्रारिनल तक कहना पड़ेगा. रिनल मान तक किडनी. सो सुप्रारिनल ग्लैंड, आड्रिनल ग्लैंड का दूसरा नाम है, आड्रिनल ग्लैंड का दूसरा नाम है सुप्रारिनल. आड्रिनल ग्लैंड का दूसरा नाम है, ठीक है. आड्रिनल ग्लैंड का दूसरा नाम है सुप्रारिनल. सो आड्रिनल कॉर्टेक्स इज कंट्रोल अंडर controlled by ACTH or adrenocorticotropic hormone of antirepituitary. Adrenocorticotropic hormone of anterior pituitary. anterior pituitary का जो हार्मोन है एसीटीएस, ये ओनली कॉर्टेक्स को कंट्रोल करेगा. किसको कंट्रोल करेगा? कॉर्टेक्स. मतलब डू यू नो एसीटीएच? एसीटीएच सीक्रेट फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी. एंटीरियर पिट्यूटरी से याद करो एसीटीएच, ग्रोथ हार्मोन, गोनाडोट्रोफिन याद करो, एफएसएच, एलएच याद करो, प्रोलैक्टिन या मामोट्रोफिन, वो एंटीरियर पिट्यूटरी से आता है कि नहीं? तो एड्रिनल कॉर्टेक्स को कौन रेगुलेट करेगा? एसीटीएच करेगा ना प्रोलैक्टिन करेगा? एसीटीएच. लिख लिया? आई एम वेटिंग यू राइट. मु अपेक्षा करुच्ची तुम लिखि दियो. लेखिने तापर आगुच लेखा सारंतु आगुच. क्या हो गया? कैसा हो गया? ये एग्जिट है क्या? कौन सा मानना पड़ेगा? अंडू. अंडू हो गया, ठीक है. सो अच्छा, तुम्हारा मन में क्वेश्चन नहीं आ रहा क्या? एड्रिनल कॉर्टेक्स को एसीटीएच और कंट्रोल करेगा. मेडुला तो है, ये मेडुला को कौन कंट्रोल करेगा? मेडुला को कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. डू यू नो ऑटोनॉमिक? सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है पीछे. सो राइट ऑन, एड्रिनल मेडुला इज कंट्रोल्ड बाय, एड्रिनल मेडुला is controlled by ANS, autonomic nervous system. Autonomic nervous system. Autonomic nervous system. ANS. Autonomic nervous system. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. क्लियर? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा. ठीक है, ओके. लेट्स से
hormones of adrenal cortex. Now we will see hormones of adrenal cortex. Adrenal cortex के क्या क्या हार्मोन सिक्रेशन होता है, उसका फंक्शन. आर यू रेडी? एक ही हार्मोन सॉरी 3 हार्मोन आता है. अल्डोस्टेरोन, हार्मोन और मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन. कॉर्टिसोल हार्मोन और ग्लूकोटिकॉइड हार्मोन. हार्मोन मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन. यस, मिनरलो माने मिनरल का पर काम करेगा. मिनरल माने सोडियम पोटेशियम. मिनरलोकॉर्टिकॉइड, मिनरल कॉर्टिकॉइड मिनरल का पर काम करेगा. मिनरलो मीन्स मिनरल कॉर्टिकॉइड, सेक्स स्टेरॉइड्स और सेक्स हार्मोन. हाँ, दिस हार्मोन सीक्रेट फ्रॉम एड्रेनल कॉर्टेक्स. 3 हार्मोन आपको याद रखना पड़ेगा. अल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, सेक्स हार्मोन. अल्डोस्टेरोन का एक नाम है मिनरलोकॉर्टिकॉइड. मिनरलो, कॉर्टिसोल, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सेक्स स्टेरॉइड, सेक्स हार्मोन. उसका फंक्शन पूछता है. हार्मोन पूछता है, हार्मोन कहां से सीक्रेशन होगा? एड्रेनल कॉर्टेक्स. तीनों हार्मोन का फंक्शन और डिजीज और क्या. रेडी? रेडी? अच्छा, ये चैप्टर के बाद मैं सेकेंड ईयर स्टार्ट करूंगा. सेकेंड ईयर जैसे सेकेंड ईयर जेनेटिक्स चल रहा ना, मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कर दूंगा. ठीक है? हाँ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ. जेनेटिक्स खत्म हो जाएगा, मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी खत्म कर दूंगा. उसके बाद सेल पढ़ा देंगे. ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन खत्म करने के बाद फिर सेल को आ जाऊंगा. ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या सेकेंड ईयर भी चलना चाहिए. फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ये से खत्म करते हैं. ये हो गया. फंक्शन ऑफ अल्डोस्टेरोन. सर जेनेटिक्स खत्म करके पार्ट 2 को आ जाएंगे. पार्ट 2 मालूम है? मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ओपरन कंसेप्ट, ट्रांसलेशन. ठीक है, वो सर उधर आ जाएंगे. वो खत्म करके फिर बायोटेक्नोलॉजी में चले जाएंगे. सो बायोटेक्नोलॉजी पार्ट 1 पार्ट 2. तो मैं यहाँ पर बॉटनी में आ जाऊँगा. ठीक है, ये खत्म करके, क्योंकि दोनों में ही लेता हूँ, जूलॉजी बॉटनी. सर को मैंने कुछ टॉपिक जूलॉजी बॉटनी लेंगे, मैं भी कुछ लेंगे, बहुत है ना. मेजॉरिटी शायद. हाँ, मैं ले लूँ. सर लेने तो ये थ्योरेटिकल में लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम, नो इश्यू. ओके, फंक्शन ऑफ अल्डोस्टेरोन. ठीक है, फंक्शन ऑफ अल्डोस्टेरोन. राइट डाउन. इट retain water
and electrolyte balance. Electrolyte means Na plus Cl minus. It retain water and electrolyte. सुनिए कहां पर मालूम है, सुना है नेफ्रॉन का डीसीटी पार्ट, पीसीटी डीसीटी, retain water and electrolyte on the DCT part of the nephron, on the DCT, distal convoluted tubule, distal convoluted tubule, part of the nephron, part of nephron. याद रखना नेफ्रॉन का जो डीसीटी पार्ट होता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, सुना है ना नेफ्रॉन, इसमें वाटर को ऑब्जर्व कर पाएगा और NaCl इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी करेगा, क्योंकि NaCl भी ऑब्जर्व होगा। लेकिन पहले ये हार्मोन आएगा, आने के बाद तो डीसीटी को कोटिंग हो जाएगा, उसका ऊपर कोटिंग होगा, फिर उसके बाद वाटर NaCl ऑब्जर्व होगा। वाटर आपको मालूम है वाटर ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोसिस की तरह Na एनर्जी चाहिए ATP, Cl भी ऑस्मोसिस पासिवली ऑब्जर्व होगा। लेकिन ये हार्मोन जब तक कोटिंग नहीं होगा ना, वाटर ऑब्जर्व नहीं होगा, इसलिए बोलते ना अल्डोस्टेरोन। और एक बात बताया था, और एक हार्मोन है वाटर ऑब्जर्व करेगा, दैट हार्मोन डीसीटी पार्ट को इन्फ्लुएंस करेगा, एंटी यस डायरेटिक हार्मोन ADH, नहीं भासोप्रेसिन, सुना है कि नहीं? तो क्वेश्चन आता है व्हिच हार्मोन स्टिमुलेट टू द डीसीटी पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन फॉर वाटर ऑब्जर्वेशंस? ऑप्शन ए भासोप्रेसिन और ADH, ऑप्शन बी अल्डोस्टेरोन, ऑप्शन सी बोथ। वेरी गुड, बोथ मानना। क्वेश्चन क्या पूछा? व्हिच हार्मोन इन्फ्लुएंस टू द नेफ्रॉन पार्ट, डीसीटी पार्ट फॉर वाटर ऑब्जर्वेशन, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। ऑप्शन ए ADH, ऑप्शन बी अल्डोस्टेरोन, ऑप्शन सी बोथ। तो किसको मानना पड़ेगा? बोथ, है ना, ये जानबूझ कर देगा। अच्छा, और एक ट्विस्ट हो गया, और एक भी हार्मोन आता है, 3 हार्मोन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है डीसीटी पार्ट में। तो यहां पर नोट में लिख लीजिए, नोट में द हार्मोन दैट रेस्पॉन्सिबल फॉर वाटर ऑब्जर्वेशन और रिटेन वाटर ही पहले, वाटर ऑब्जर्वेशन and electrolyte balance on the DCT part of nephron are number 1 ADH और aldosterone, number 2 ADH and vasopressin, extremely sorry, ADH and vasopressin, ADH and vasopressin, ADH और vasopressin, नंबर 2 aldosterone, और नंबर 3 में और एक हार्मोन दे रहा हूं, वो है थायरोक्सिन। याद रख लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यही आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सा हार्मोन नेफ्रॉन का डीसीटी पार्ट को स्टिमुलेट करता है वाटर एंड NaCl इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन होने के लिए, वाटर ऑब्जर्वेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए एंड वाटर ऑब्जर्व करने के लिए कौन सा हार्मोन डीसीटी पार्ट को स्टिमुलेट करे, डीसीटी पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन को? ऑप्शन है ADH, ऑप्शन बी थायरोक्सिन, ऑप्शन सी अल्डोस्टेरोन, ऑप्शन डी ऑल। तो ऑल मानना, क्योंकि तीनों आपको प्रैक्टिस करवा दिया, ये तीनों ही आता है आंसर। हाँ, इलेक्ट्रोलाइट मतलब Na+Cl-, तीनों जानबूझ कर देगा।
ओके, सो आल्डोस्टोन वाटर ऑब्जर्वेशन करेगा, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेगा आल्डोस्टोन, ठीक है। आल्डोस्टोन रिटेन सोडियम एंड एलिमिनेट पोटेशियम। सोडियम को रखेगा, पोटेशियम को एलिमिनेट करेगा। आल्डोस्टोन का मेन फंक्शन सोडियम रखेगा, एलिमिनेट करेगा पोटेशियम, हमारा बॉडी से पोटेशियम को एलिमिनेट कर देगा, है ना। सोडियम को रखेगा, ठीक है, सोडियम को रखेगा, पोटेशियम। आल्डोस्टोन और क्या करेगा, एसिड बेस बैलेंस करेगा। अच्छा, हमारा बॉडी एसिडिक होता अच्छा रहेगा ना अल्कलाइन होता अच्छा रहेगा? अल्कलाइन, तो एसिड को निकाल देगा। एसिड मतलब हाइड्रोजन, अल्कलाइन मतलब बाइकार्बोनेट, सुना है ना बाइकार्बोनेट, SiO3 माइनस। इट मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस करेगा। हाँ, एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करेगा। कैसे? एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करेगा ना, एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करेगा, एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करेगा। कैसे? एसिड बेस बैलेंस मतलब क्या है? एसिड मतलब हाइड्रोजन, इट एलिमिनेट हाइड्रोजन, सॉरी, it eliminate hydrogen and retain बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट हमारा बॉडी के लिए जरूरत है। बाइकार्बोनेट बेस है ना अल्कलाइन, हाइड्रोजन एसिडिक होता है, हाइड्रोजन रहेगा तो किडनी फेल हो जाएगा, तुम्हारा ब्लड जो पीएच मेंटेन होने पाएगा। ब्लड का पीएच मालूम है 7.4, अल्कलाइन है हमारा ब्लड। अल्कलाइन नहीं होगा तो कैसे ऑक्सीजन कैरी होगा बताओ? ऑक्सीजन कैरी हो नहीं पाएगा, अल्कलाइन मीडियम हो रहा है इसलिए। तो क्वेश्चन आया, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आल्डोस्टोन? रिटेन द वाटर and NaCl from the distant part of the kidney, or it maintain water and electrolyte balance. Second, it maintain acid base balance, that means it remove the hydrogen and retain the bicarbonate. Third, it always retain the sodium, keep the sodium and eliminate the potassium. They all are right answers, ठीक है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कोई भी कॉम्पिटेटिव है, चाहे वो, है ना, छोटा लेवल से लेकर हाई लेवल तक, ठीक है। ये आल्डोस्टोन कमी से क्या डिजीज होगा देखेंगे। डेफिशिएंसी ऑफ आल्डोस्टोन, डेफिशिएंसी माने क्या? कमी, कम कम, डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ऑफ आल्डोस्टोन। और डिजीज का नाम है एडिसन्स डिजीज, किडनी फेल हो जाएगा। एडिसन्स डिजीज में हाइड्रोजन बढ़ जाएगा, हाइड्रोजन क्या कि सोडियम कम हो जाएगा, पोटेशियम बढ़ जाएगा, पोटेशियम, सोडियम कम हो जाएगा ना, उसका फंक्शन क्या है? सोडियम को रखेगा ना, पोटेशियम को निकाल देगा, बस सोडियम पोटेशियम बैलेंस करेगा। सोडियम पोटेशियम बैलेंस होगा तो हमारा नर्व इम्पल्स कंडक्शन होता है, नर्व फाइबर के अंदर सोडियम रहता है, आपको पता है, बाहर रहता है पोटेशियम। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हारा पोटेशियम जीरो हो जाएगा, पोटेशियम रहना चाहिए, सोडियम के हिस्से से पोटेशियम रहेगा, सोडियम प्रोपोर्शन उसका मेंटेन होना चाहिए। सोडियम अंदर रहेगा, पोटेशियम बाहर रहेगा। अगर पोटेशियम नहीं रहेगा तो नर्व इम्पल्स कंडक्शन कैसे होगा? बाहर तो पोटेशियम जरूर रहेगा, नर्व फाइबर का अंदर सोडियम रहना चाहिए। तो ये क्या करेगा? सोडियम को रखेगा, पोटेशियम, एक्सेस पोटेशियम को निकाल देगा। ज्यादा पोटेशियम हार्ट फेल कर देगा, हार्ट डैमेज करेगा। ऐसे ये बाइकार्बोनेट को रखेगा, हाइड्रोजन को निकाल देगा। अगर हाइड्रोजन बढ़ जाएगा तो किडनी फेल हो जाएगा। तो एडिसन्स डिजीज में ये सब इरेगुलर हो जाता है, पोटेशियम बढ़ जाता है, हाइड्रोजन बढ़ जाता है। तो इसलिए एडिसन्स डिजीज जो है, ये जो डेफिशिएंसी ऑफ आल्डोस्टोन कॉज एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स डिजीज में किडनी फेल हो जाएगा एंड हार्ट फेल, बोथ किडनी एंड हार्ट बोथ आर फेल्ड। एडिसन, more aldosterone,
more aldosteronism, or Crohn's disease. सोडियम बढ़ जाएगा, बाइकार्बोनेट बढ़ जाएगा, ज्यादा अल्कलाइन हो जाएगा, ज्यादा सोडियम बढ़ जाएगा तो ब्रोंज कलर स्किन होगा। कौन सा? ब्रोंज, तांबा, तांबा, तांबा स्किन, सोडियम बढ़ गया, बाइकार्बोनेट बढ़ जाएगा, ज्यादा अल्कलाइन होगा, ज्यादा सोडियम बढ़ेगा तो ब्रोंज कलर स्किन, उसको कहते हैं क्रॉन्स डिजीज, ब्रोंज कलर स्किन। ओके, ये हुआ था एल्डोस्टेरोन। क्वेश्चन पूछा गया, व्हिच हार्मोन रिटेन द सोडियम एंड एलिमिनेट द पोटेशियम? ऑप्शंस आर ग्रोथ हार्मोन, थायरोक्सिन, एल्डोस्टेरोन। Aldosterone, very good, aldosterone. Which hormone retain the water in the descending part of the nephron of the kidney and also retain the sodium chloride or electrolyte? Option aldosterone, ADH, thyroxine, all. कौन सा हार्मोन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी मेंटेन करेगा, वाटर भी ऑब्जर्व करेगा, तीनों। नाउ कॉर्टिसोल, रेडी फॉर कॉर्टिसोल? हो गया ना? कॉर्टिसोल, फंक्शन ऑफ कॉर्टिसोल, फंक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, उसका नाम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी और कॉर्टिसोल। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और कॉर्टिसोल नाम सेम, ये ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करेगा, इट इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल। अच्छा, तुमको पता है भी ग्लूकोज लेवल को ग्लूकागॉन हार्मोन भी बढ़ाता है, लिखो, इट इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन आवर बॉडी। लिखी दिया नोट में, ग्लूकागॉन ऑल्सो डू इट, ग्लूकागॉन डू इट, ग्लूकागॉन भी এটা करे। कॉर्टिसोल इंसुलिन का एगेंस्ट में काम करेगा, इसलिए एंटी इंसुलिन हार्मोन कहते हैं। इट वर्क एगेंस्ट इंसुलिन, एंटी इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन ग्लूकोज को कम करता है, ग्लूकागॉन कॉर्टिसोल बढ़ाते हैं। पूछा जाएगा कौन सा हार्मोन ग्लूकोज को बढ़ाएगा? ग्लूकागॉन। अब कॉर्टिसोल, कौन सा हार्मोन इन ग्लूकोज को कम करेगा? इंसुलिन, इंसुलिन, इंसुलिन। ओके, सो एंटी इंसुलिन हार्मोन कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? एंटी इंसुलिन, इंसुलिन का एगेंस्ट में काम करेगा। इट मेटाबोलाइजेस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट को मेटाबॉलिज्म करेगा। इट मेटाबोलाइजेस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। ठीक है, ये मेटाबॉलिक हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक हार्मोन। इट इज ए मेटाबॉलिक हार्मोन। ये मेटाबॉलिक हार्मोन है। नेक्स्ट, cortisol is responsible for the formation of blood.
formation of blood or erythropoiesis. एरिथ्रो मीन्स क्या? आरबीसी. पोइसिस मान फॉर्मेशन. आरबीसी फॉर्मेशन, ये ब्लड फॉर्मेशन कर, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड. ये ब्लड बनाता है, एरिथ्रोपोइसिस. अच्छा, और एक ट्विस्टिंग क्वेश्चन दे रहा हूं, आता है क्वेश्चंस. कौन सा एरिथ्रोपोइसिस करेगा? और ब्लड फॉर्मेशन हार्मोन कोडा. ब्लड फॉर्मेशन हार्मोन कोडा लिखन दो. Which hormone do erythropoiesis? Which hormone do erythropoiesis? Or which hormone is responsible for formation of blood? Is responsible for formation of blood? A. Erythropoietin. B. Cortisol. C. थायरोक्सिन. और एक मैंने मेल में किया था, और एक मेल में है डी, दैट इज टेस्टोस्टेरोन. ऑल्सो टेस्टोस्टेरोन. ये चारों हार्मोन ब्लड बनाएगा. चार हार्मोन, एरिथ्रोपोइटिन, कॉर्टिसोल और ग्लूकोटिकॉइड, थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, ये चारों हार्मोन ब्लड बनाता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. So next functions we'll say about the cortisol. cortisol और क्या करेगा? cortisol तो ब्लड बनाएगा, और दैट इज ए ब्लड फॉर्मेशन. डू यू नो ब्लड फॉर्मेशन करेगा. और इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग सुना है, साइक्लोस्पोरिन ए, एक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग. अगर इम्यूनिटी को कम करना चाहते हो, अगर ज्यादा इम्यूनिटी होगा तो खराब है, ज्यादा इम्यूनिटी होगा तो ऑटो इम्यूनिटी डिजॉर्डर होगा, है ना. तो कॉर्टिसोल, अगर तुम्हारा ऑटो इम्यूनिटी होगा तो दैट लीड्स टू डेथ ऑल्सो. ऑटो इम्यूनिटी हो जाएगा, एंटीबॉडी एंटीजन को नष्ट कर देगा. इम्यूनिटी ठीक है, इम्यूनिटी हमारे लिए अच्छा है, एंटीबॉडी हमारे लिए बहुत बढ़िया, लेकिन ज़्यादा एंटीबॉडी बढ़ेगा तो ऑटो इम्यूनिटी करेगा. ज़्यादा एंटीबॉडी बढ़ेगा तो उस एंटीजन को नष्ट कर देगा. तो इसलिए हम उस टाइम क्या लेते हैं? इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग. तो कॉर्टिसोल सप्रेस द एंटीबॉडी फॉर्मेशन. ठीक है, clear? That is a immunosuppressive hormone. It is a immunosuppressive hormone. Immunosuppressive hormone. It is a immunosuppressive hormone. Why it is known as immunosuppressive hormone? Why it is known as immunosuppressive hormone? It suppresses the formation of antibody. It suppresses the formation of antibody. And suppress the formation of antibody and prevent autoimmunity. And prevent autoimmunity.
इम्यूनिटी आमको ऑटो इम्यूनिटी करने दबनी ऑटो इम्यूनिटी हो जाएगा। इसलिए ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान हम रेसिपिएंट जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट जिसको हमने दिया उसी को हम कॉर्टिसोल देते हैं। पूछा जाता है जैसे फॉर एग्जांपल किडनी ट्रांसप्लांटेशन या लिवर ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, किसी को लिवर दे रहे हो, किसी को किडनी दे रहे हो, कर्निया दे रहे हो, तो उसी समय कॉर्टिसोल क्यों देते हैं रेसिपिएंट को? क्योंकि उसका बॉडी में जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन ज़्यादा ना हो, इसीलिए कॉर्टिसोल देते हैं टू प्रिवेंट टू सप्रेस द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा, सपोज आई विल गिव माई किडनी टू यू, यू आर नॉट माई सन, यू आर नॉट माई डॉटर, आई एम नॉट योर फादर, आई एम नॉट योर मदर, but you will not give me, है ना, you are not my son or daughter, but you are belong to a family, I am belong to a family, but तुम बोल रहे कि तो टिश्यू मैचिंग हो गया, ब्लड मैचिंग हो गया, होने में क्या है, HLA मैचिंग ही नहीं हो पाया, मेरा एंटीजन तुम्हारा एंटीजन मैचिंग नहीं कर पाएगा। सेम फैमिली में अगर होता है, बाप बेटा को दे सकता है, बाप बेटी को दे सकता है, माँ बेटा बेटी को दे सकता है, लेकिन उसी समय दूसरा फैमिली अगर होगा किडनी ट्रांसप्लांटेशन के दौरान बा लिवर ट्रांसप्लांटेशन बा कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो रेसिपिएंट को कॉर्टिसोल लेना पड़ेगा, नहीं तो ज़्यादा एंटीबॉडी बढ़ जाएगा ना, वो एंटीबॉडी तुम्हारा नुकसानदायक हो जाएगा। इसलिए कॉर्टिसोल देने में एंटीबॉडी कम हो जाएगा। कॉर्टिसोल सप्रेस द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। इसलिए पूछता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान व्हाई कॉर्टिसोल इज गिवन टू रेसिपिएंट बा व्हिच हार्मोन इज गिवन टू रेसिपिएंट टू सप्रेस द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, यू गिव द कॉर्टिसोल, यू गिव आंसर कॉर्टिसोल। व्हाई? और एक होता है साइक्लोस्पोरिन ए भी दिया जाता है, वो ट्राइकोडर्मा फंगस पॉलीस्पर्म फंगस से आता है। ट्राइकोडर्मा क्यों देते हैं इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग? क्योंकि अगर एंटीबॉडी बढ़ जाएगा तो वो ऑर्गन जो लिया वो तो नष्ट होगा, वो छोड़ो उसको, लेकिन आदमी भी मर सकता है। इसलिए ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जब होगा उसको कॉर्टिसोल देते हैं, मतलब 6 मंथ्स के लिए लेना पड़ेगा कि 1 साल तक के लिए कि 5 ईयर्स के लिए। एंटीबॉडी अगर कम हो जाएगा तो और कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर एंटीबॉडी बढ़ गया तो ऑटोमेटिक होगा, एंटीबॉडी एंटीजन को नष्ट कर देगा, इसलिए कॉर्टिसोल देना पड़ेगा। इवन हस्बैंड वाइफ को अगर देगा तो वो भी पराया हो जाएगा, हस्बैंड वाइफ के लिए पराया, वाइफ हस्बैंड के लिए पराया, क्योंकि वो एक फैमिली से ये एक फैमिली से, लेकिन बेटा बेटी अपना है, बेटा बाप के लिए, बाप बेटी बाप के लिए, और बेटा बेटी माँ बाप के लिए सेम है। हस्बैंड वाइफ को अगर देगा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन भी, उसका ब्लड मैचिंग, टिश्यू मैचिंग, HLA मैचिंग परफेक्ट होने के बाद, लेकिन बेटा बेटी के साथ बाप डैड मम का पूरा मैच हो जाता है, क्योंकि वो जन्म क्या है ना, बाप या माँ जो है बेटा बेटी को दे सकते हैं, बेटा बेटी डैडी और मम्मी को दे सकते हैं, लेकिन हस्बैंड वाइफ को देगा अभी उनका ये अलग हो जाएगा। बात जैसे मैं किसी दूसरे को किडनी दे रहा हूँ, बात उसी समय कॉर्टिसोल देना पड़ेगा, कॉर्टिसोल नहीं देंगे तो प्रॉब्लम तो होगा, ऑटोमेटिक होगा, एंटीबॉडी बढ़ जाएगा। और एक है कॉर्टिसोल होता है इम्यूनोसप्रेसिव हार्मोन, ये इम्यूनोसप्रेसिव लोग क्या सप्रेस द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, इसको लिखा है इम्यूनोसप्रेसिव, हाँ लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है। इट इज ए एंटी इन्फ्लामेटरी हार्मोन, एंटी इन्फ्लामेटरी हार्मोन, राइट आउट, एंटी इन्फ्लामेटरी हार्मोन। सपोज तुम्हारा बॉडी में जलन हो रहा है, बोलते ना कभी कभी मेरा हाथ पैर सब जलन होता है, पेट जलन होता है, शरीर पर जल रहा है, क्यों ऐसा हो रहा? हिस्टामाइन ज्यादा सिक्रेशन हुआ। क्यों? हिस्टामाइन कहां से आता है मालूम है? बासोफिल सेल्स, मास्ट सेल, बासोफिल सेल्स मास्ट सेल से हिस्टामाइन ज्यादा सिक्रेशन होगा। मास्ट सेल्स इन टिश्यू, बासोफिल, डू यू नो बासोफिल सेल? सुना है बासोफिल, न्यूट्रोफिल, हाँ बासोफिल, हाँ न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स, बासोफिल्स, एसिनोफिल्स। बासोफिल से अगर ज्यादा बढ़ेगा तो हिस्टामाइन ज्यादा सिक्रेशन होगा। हिस्टामाइन ठीक है हमारे लिए, अच्छा है, कोई खराब नहीं है, लेकिन ज्यादा हिस्टामाइन होगा। हिस्टामाइन क्या होता है? वो माइक्रोब्स को नष्ट करता है, इन्फ्लेमेशन करके बर्निंग सेंसेशन अगर ज्यादा होगा तो हमारे लिए नुकसानदायक है कि नहीं? तुम बोलते हो नहीं WBC हमारे लिए अच्छा है, बहुत बढ़िया बात है, अच्छा है। अगर तुम्हारा 4 लाख WBC हो गया तो तुम कौन सा अच्छा होगा? तो ब्लड कैंसर हो गया। तुम बोल रहे हो WBC हमारे लिए अच्छा है, एक लिमिट है, 10,000 होना अच्छा है,
3 लाख हो गया WBC, तो तुम्हारा ब्लड इन्फेक्टेड हो गया, तुमको लीकेमिया हो गया है, ब्लड कैंसर। तुम तो अभी बोल रहे थे WBC अच्छा है, एक लिमिट होता है, इतना से इतना तक रहेगा तो अच्छा रहेगा। अगर इन्फेक्शन बढ़ गया तो WBC बढ़ गया, ठीक है। इन्फेक्शन किसका बॉडी में इन्फेक्शन नहीं है, 10,000 में 12,000 15,000 ठीक है, 15,000 का जगह में तुम्हारा 2 लाख हो गया, 3 लाख हो गया, 4 लाख हो गया WBC, तो ब्लड कैंसर, ठीक है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी मीन्स इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, दैट डिक्रीज आवर इन्फ्लेमेशंस, दैट डिक्रीज द मास्ट सेल्स एंड बासोफिल सेल्स, ठीक है। इसीलिए उसको कहते हैं इन्फ्लेमेशन, हिस्टामाइन कम करेगा, क्या कम करेगा, हिस्टामाइन, इसलिए एंटी इन्फ्लेमेटरी। Okay, my dear students, now let's see about the cortisol. Which is the right statement regarding cortisol? Cortisol is anti-inflammatory hormone, number 1. Cortisol is immunosuppressive hormone, number 2. Cortisol is anti-insulin hormone, number 3. All are the right statement. All are right statement. Okay. cortisol अगर ज्यादा होगा कि डिजीज होगा, तुमको पता है, ग्लूकागॉन बढ़ेगा, सुना है डायबिटीज मेलिटस, मधुमेह बीमारी, डायबिटीज, शुगर बीमारी, बोलते हैं उसको शुगर बीमारी है, तुम्हारा शुगर है, हाँ मेरा शुगर हो गया, मैं चाय कॉफी नहीं पीता हूँ, तो चाय में साकारीन डालते हैं नहीं शुगर, तो शुगर बीमारी, जैसे ग्लूकागॉन बढ़ेगा तो अभी शुगर बीमारी होगा, जिसको कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। इंसुलिन कम होगा तो डायबिटीज मेलिटस, कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो डायबिटीज मेलिटस। क्या मैंने बोला, ग्लूकागॉन और कॉर्टिसोल बढ़ेगा, डायबिटीज मेलिटस, शुगर बीमारी डायबिटीज। अच्छा, इंसुलिन कम होने में डायबिटीज होता है कि नहीं, ना इंसुलिन बढ़ने में डायबिटीज होगा, वेरी गुड, कम होने में डायबिटीज होता है, इंसुलिन कम होने में। अच्छा, इंसुलिन बढ़ने में, इंसुलिन शॉक, जैसे मैं तुम्हारे सामने बात कर रहा हूँ, मेरे को इंसुलिन शॉक हो गया, मैं डायरेक्ट सेंसलेस होकर गिर जाऊंगा, सेंस आएगा नहीं, तो इंसुलिन शॉक हो गया, मतलब मेरा सेल को फूड नहीं गया ना, ग्लूकोज 0 लेवल हो गया। इंसुलिन बढ़ गया ना, तो बढ़ गया तो क्या होगा, सेल भूखा रहेगा ना, सेल को मतलब इतना फास्ट मेटाबॉलिज्म होगा, इंसुलिन अगर बढ़ेगा तो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट बहुत फास्ट मेटाबॉलिज्म होगा, तो सेल भूखा रह जाएगा, चक्कर आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो इंसुलिन शॉक कहते हैं, इंसुलिन शॉक में भी आदमी मर सकता है, सेंस आ नहीं पाता है, इंसुलिन ज्यादा होने भी खराब है। इसलिए मैं तुमको शुरू से बोला, कोई भी हार्मोन ज्यादा होने में खराब है, कोई भी हार्मोन अगर 0 लेवल होता है भी, कम होता भी खराब है, उसका मीडियम रेंज होना चाहिए। ओके, सो राइट डाउन, मोर cortisol cause diabetes mellitus, and less cortisol cause hypoglycemia. Okay, my dear students, now completed cortisol. Now I am coming to sex hormone, sex steroids. cortisol हो गया, sex steroids, sex hormone का पर। अच्छा, तुम बोलोगे सर तो सेक्स हार्मोन तो ओवारी से आता है, एस्ट्रोजन, सुना है कि नहीं, ओवारी से आता है, नहीं ओवारी से नहीं आता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन कहाँ से आता है, ओवारी से, और टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस, बोथ आर राइट। एड्रिनल कॉर्टेक्स भी प्रोडक्शन करेगा सेक्स हार्मोन, पूछा जाएगा, सेक्स हार्मोन प्रोड्यूसेस फ्रॉम ओवारी, टेस्टिस, एड्रिनल कॉर्टेक्स, डी दे रखा है ऑल, ठीक है, तुमको पता है, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन, ओवारी से एस्ट्रोजन, एड्रिनल कॉर्टेक्स से अगर मेल होगा तो टेस्टोस्टेरोन, मेल होगा तो, और फीमेल होगा एस्ट्रोजन, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स भी सेक्स हार्मोन सीक्रेशन करेगा, सेक्स हार्मोन और सेक्स स्टेरॉइड सीक्रेट फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स। ऑफ एड्रिनल ग्लैंड लिख लीजिए, एड्रिनल ग्लैंड,
अगर मेल में टेस्टोस्टेरोन नहीं आएगा तो क्या होगा, मेल को क्या होगा, छक्का, जो किन्नर कहते हो, उनका टेस्टोस्टेरोन नहीं आता है। क्या है कि उनका टेस्टोस्टेरोन कम होने के बाद वो फीमेल बिहेवियर, फीमेल एटीट्यूड करते हैं, टेस्टोस्टेरोन जीरो होता, उनका बॉडी में टेस्टोस्टेरोन नहीं है, जीरो, इसलिए तो फीमेल एटीट्यूड, फीमेल एक्टिविटी करते हैं। तो उनका एड्रिनल कॉर्टेक्स टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन नहीं करेगा, उनका टेस्टिस नहीं, टेस्टोस्टेरोन नहीं, स्पर्म भी नहीं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी नहीं, दीटा को नो, नील। तो इसीलिए तो मेरा क्वेश्चन था टेस्टोस्टेरोन कहाँ से आएगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स और टेस्टिस, टेस्टिस का सेमिनिफरस ट्यूबुल नहीं, हाँ लीडिक सेल कहते हैं, लीडिक सेल नहीं, लीडिक सेल टेस्टोस्टेरोन, हाँ टेस्टोस्टेरोन याद रखना, लीडिक सेल ऑफ द टेस्टिस, कौन सा सेल, लीडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल। टेस्टोस्टेरोन आता है कॉर्टेक्स से एंड ऑल्सो लीडिक सेल एंड लीडिक सेल, याद रखना, लीडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल ऑफ seminiferous tubule of the testis, seminiferous tubule of the testis, tubule of testis। क्वेश्चन पूछा गया टेस्टोस्टेरोन कहां से आता है, टेस्टिस, एड्रिनल ग्लैंड, बोथ, एड्रिनल ग्लैंड मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स सर क्या। अच्छा ठीक है, प्रोड्यूसर लिखियो ना, ये पढ़ियो लिखियो, ये जो सेक्स हार्मोनटा एटा होची सेक्स हार्मोन इन मेल लिख दियो, इन मेल टेस्टोस्टेरोन, इन मेल टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन सेक्स हार्मोन। Sex hormone, sex steroid secret from adrenal cortex of adrenal gland and Leydig cell, interstitial cell of seminiferous tubule of the testis। मेल में टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन सेक्स हार्मोन प्रोडक्शन होगा। तुम जो बोल रहे हो नहीं सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन कहाँ से प्रोडक्शन होगा, टेस्टिस बोला था ना, टेस्टिस का कौन सा पार्ट, लीडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल ऑफ द सेमिनिफरस ट्यूबुल ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस का अंदर सेमिनिफरस ट्यूबुल है, सेमिनिफरस ट्यूबुल का अंदर लीडिक सेल है, सेमिनिफरस ट्यूबुल का अंदर क्या है, लीडिक सेल, कौन सा सेल, लीडिक और इंटरस्टिशियल सेल, यहां से टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन होगा। और एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या, एंड इन फीमेल एस्ट्रोजन प्रोड्यूस फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स of adrenal gland and Graafian follicle of ovary, Graafian follicle of ovary दो जगह से आएगा। ग्राफियन फॉलिकल के एंडोक्राइन ग्लैंड है, टेम्पोररी, हर एक मेंस्ट्रुएशन में बनेगा, नष्ट भी हो जाएगा ग्राफियन फॉलिकल। और ग्राफियन फॉलिकल ऑफ ओवरी से एस्ट्रोजन आएगा एंड कॉर्टेक्स से भी एस्ट्रोजन आएगा। दोनों जगह से आएगा, ठीक है। Any doubt, please ask me. Any doubts? Okay. So now see deficiency. Deficiency उसका ज्यादा होने में कुछ प्रॉब्लम नहीं, ज्यादा होने में क्या होता है,
सेक्स हार्मोन ज्यादा होने में स्पर्म ज्यादा बनेगा, सेक्स हार्मोन ज्यादा होने में सेक्सुअल एटीट्यूड, सेक्सुअल बिहेवियर, लिबिडो, सेक्सुअल सेक्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन डेवलपमेंट होगा। लेकिन कम होने में क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ सेक्स हार्मोन in male, that is testosterone or androgen, cause gynecomastia, जोटा कि आम कहे गायनेक फीमेल कैरेक्टर डेभलप किया किन्नर किन्नर बा छका लोकंकर गायनेकोमास्टिया जोटा कि सेक्स हार्मोन तांकर जीरो, स्पर्म प्रोडक्शन जीरो, दे अडॉप्ट द फीमेल कैरेक्टर्स, गायनेकोमास्टिया। ओके, डेफिशिएंसी ऑफ सेक्स हार्मोन in female means estrogen or estradiol, cause adrenal virilism, मर्द जैसा कैरेक्टर दिखाएगा, मर्द जैसा कैरेक्टर, वॉइस दिखे नहीं होगा, मर्द जैसा अग्रेसिवनेस आएगा, मर्द जैसा वॉइस करेगा, वॉइस मॉड्यूलेशन ठीक होगा, कर्कट स्वर, हाँ गधा माने घोड़ा आवाज करियो जंदी तार एटीट्यूड अलग, मर्द टाइप रो एटीट्यूड, एक्टिविटी, बिहेवियर सब जेंट्स टाइप रो। फीमेल रो कौन सी एटीट्यूड टाइप रहबनी, नो एटीट्यूड नो बिहेवियर ऑफ फीमेल रो कौन सी रहइबो नाही हला। तेणु ताठे फीमेलनेस आसबनी, तार मेल आसो, मेल कैरेक्टर निशधाड़ी भी उठी जाए पारे। एड्रेनाल विरिलिज्म पुरुषत्व लक्षण, दैट इज मीन्स जेंट्स कैरेक्टर्स आएगा। Okay my dear friends, now we will come about the adrenal medulla. Let's come adrenal medulla. Adrenal medulla of adrenal gland सुना है, adrenaline, adrenaline noradrenaline सुना है, वो adrenal medulla से आता है। May I come to the next? Ready? Adrenal medulla. Adrenal gland, it secretes both adrenaline and noradrenaline. Adrenaline और epinephrine, adrenaline or epinephrine and noradrenaline or norepinephrine. Noradrenaline or norepinephrine, both are known as catecholamines. दोनों एक साथ में काम करते हैं, दुश्मन नहीं है, दोस्त है, दोनों दोस्त है, एक साथ में एंटागोनिस्टिक नहीं है, सिनर्जिस्टिक, बोथ वर्क एट ए टाइम, दोनों दोस्त है, सिनर्जिस्टिक हार्मोन, बोथ आर सिनर्जिस्टिक हार्मोन
सिनर्जिस्टिक, एक साथ में काम करते हैं। वर्क एट ए टाइम, दोनों एक साथ में काम करेंगे। एड्रेनालिन बढ़ा देगा और क्या, नॉरएड्रेनालिन जितना काम करे उससे ज्यादा बढ़ा देगा एड्रेनालिन। दोनों दोस्त है ना, दोनों दुश्मन नहीं है, दोनों दोस्त है। इंसुलिन ग्लूकागॉन दुश्मन होता है, ठीक है नहीं। ଯେମିତି ଆମେ କହୁଥିଲେ मेलाटोनिन एमएसएच, मेलाटोनिन एमएसएच दुश्मन होता है। इनिबिन रिलीजिंग फैक्टर, इनिबिटिंग फैक्टर, इनिबिटिंग दुश्मन होता है, रिलीजिंग फैक्टर इनिबिटिंग फैक्टर, है ना, ये दुश्मन होता है, ठीक है। ऐसे आगे जाके और एक दो हार्मोन बताऊंगा, वो दुश्मन होता है, लेकिन ये दोनों दोस्त है, ये दोनों एक साथ में काम करते हैं। सिनर्जिस्टिक, कैटेकोलामाइंस, कैटेकोलामाइंस एक साथ में सिक्रेशन होगा। कैटेकल, कैटेकल प्लस एमिनो एसिड टायरोसिन से आता है। कैटेकल मतलब मिक्सिंग, कैटेकल, कैटेकोलामाइंस, कैटेकल मीन्स मिक्सिंग। एड्रेनालिन और एपिनेफ्राइन, नॉरएड्रेनालिन और नॉरएपिनेफ्राइन, नॉरएड्रेनालिन और नॉरएपिनेफ्राइन, एड्रेनालिन नॉरएपिनेफ्राइन, नॉर नॉर NOR, एपिनेफ्राइन, 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 दोनों को कैटेकोलामाइंस कहते हैं। दोनों एक साथ में काम करते हैं। कॉकटेल पार्टी होता है ना, कॉकटेल, हम सबको मिला के कॉकटेल, सो ये एक साथ में सिक्रेशन होगा। हाँ, कुछ भी होता है एक साथ में ही आएगा, हाँ एक साथ में आएगा, लेकिन इफेक्ट दोनों का सेम रहेगा, अलग नहीं रहेगा, सेम रहेगा। एड्रेनालिन थोड़ा सा बढ़ा देगा और क्या, नॉरएड्रेनालिन जितना करेगा और एड्रेनालिन उसके साथ थोड़ा सा बढ़ा देगा, इफेक्ट दोनों सेम, इसलिए तो सिनर्जिस्टिक, दोनों एक साथ में ही काम करते हैं। हाँ, तुम बोलोगे सर कौन बढ़ाता है ज्यादा, एड्रेनालिन। कौन बढ़ाता है, सपोज तुम एरोप्लेन में बैठ के जा रहे हो, कुछ भी कोई बोल दिया कि एरोप्लेन का अंदर एटम बम है, तो तुम्हारा धड़कन बढ़ेगा कि नहीं। ऊपर से कैसे जब खुदा मारे, ऊपर से खुदा मारे तो और ज्यादा डेथ। पैराशूट नहीं है, सबका पैराशूट है क्या। सपोज जैसे हादसा होने का कुछ संभावना है, क्रैश होने का, तो उस टाइम धड़कन कितना होगा। तो कौन सा हार्मोन धड़कन बढ़ा दिया, एड्रेनालिन, एड्रेनालिन बढ़ा देगा, एड्रेनालिन तुम्हारा धड़कन बढ़ा देगा, ठीक नहीं। पर इंटरव्यू समय में तुम्हारा धड़कन बढ़ रहा है, रेस्पिरेशन रेट बढ़ रहा है, तो एड्रेनालिन बढ़ा रहा है। इसलिए बोलते नहीं, इंटरव्यू का समय में, एग्जामिनेशन का पीरियड में, कूल योर माइंड, हेजिटेशन नहीं होना, ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करना, माइंड को पूरा कूल रखना, ठीक है। नहीं तो एड्रेनालिन सिक्रेशन होगा, एड्रेनालिन धड़कन बढ़ा देगा, रेस्पिरेशन रेट बढ़ा देगा, एपेटाइट लॉस कर देगा। ज्यादा एड्रेनालिन अगर रहेगा ना, डिप्रेशन हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। इसलिए एड्रेनालिन को कम सिक्रेशन करना, ज्यादा सिक्रेशन नहीं करना। जो देखा बच्चा बोलते ये आज क्या करना, ये करना, ये नहीं, पूरा टेंस में रहेगा, वो कुछ कर नहीं पाएगा। सब टेंस को रिलैक्स करके तुम आगे बढ़ो। तो एड्रेनालिन सिक्रेशन तुम कर रहे हो ना, टेंस बढ़ा रहे हो मतलब क्या है, टेंस में तुम रहते हो, टेंशन में, मतलब एड्रेनालिन सिक्रेशन। टेंशन क्या होता है, एड्रेनालिन सिक्रेशन बस। और एड्रेनालिन सिक्रेशन होता है, तुम जैसे बोलते नहीं, इंटरव्यू में मैंने कुछ बोल नहीं पाया, जो आ रहा था वो भी नहीं आया, परीक्षा में मैंने छोड़ दिया, जो आया था क्या कि तुमने फोबिया हो गया, डर घुस गया। अगर तुम बिंदास बैठते तो तुम कर लोगी। इसलिए बोलते नहीं, एग्जामिनेशन पीरियड, इंटरव्यू पीरियड हमेशा बिंदास रहने के लिए क्यों सिखाया जाता है, हमेशा पूरा बिंदास हो। और पढ़ते समय भी पूरा बिंदास रहना, पढ़ते समय डिस्टर्बेंस नहीं होना। थोड़ा सा जब भी तुम सोते हो, बोलते कि पूरा नींद ले लो 6-7 घंटा 8 घंटा, और तुम बोलोगे नहीं मैं 2 घंटा सो के मैं पागल तरह पढ़ते रह जाओ, इसे पागलपन मत करो, आराम से नींद ले लो। जब पढ़ते हो पूरा बढ़िया तरीके से पढ़ो, माइंड में जिससे रिकॉर्डिंग हो जाएगा, स्कैनिंग हो जाएगा, तो वो याद हो जाएगा। इसमें क्या होता है, एड्रेनालिन सिक्रेशन होने में तुम्हारा फोबिया होता है, डर घुसता है, नर्वस हो जाता है आदमी, नर्वसनेस, टेंशन बढ़ता है, एपेटाइट लॉस होता है, स्वेटिंग होता है, बहुत सारे कुछ। किंतु एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन हमारे लिए बहुत बढ़िया क्या क्या फंक्शन करता है देख लेंगे, ठीक है। चलो उसका फंक्शन देखते हैं। अच्छा, ये एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन जो है डेरिवेटिव एक हार्मोन से आता है, टायरोसिन,
both the hormone are tyrosine derivative, tyrosine amino acid derivative. टायरोसिन से आता है। कौन सा एमिनो एसिड से? एमिनो एसिड कौन सा है? टायरोसिन। कौन सा? टायरोसिन से आता है। ओके, दोनों का फंक्शन मेटाबॉलिज्म इन टिश्यू, मेटाबॉलिज्म इन टिश्यू। It is also a metabolic hormone. It metabolizes protein, carbohydrate and fat. ये भी metabolic hormone. Metabolism in tissue metabolizes protein, carbohydrate and fat. Metabolizes protein, carbohydrate, fat. Metabolizes protein, carbohydrate, fat. ठीक है। कंट्रोल रेस्पिरेटरी रेट एंड हार्ट बीट रेट। तुम अभी बोल रहे हो कि सर आपने तो बोला था हार्ट बीट बढ़ाता है, रेस्पिरेशन रेट बढ़ाता है। मैंने क्या बोला? ज्यादा होने में बढ़ जाएगा, लेकिन हमारा रेस्पिरेशन रेट को कंट्रोल करेगा, हार्ट बीट को कंट्रोल करेगा। तुम बोल रहे हो, मैंने क्या बोला? लिमिट में। अगर तुम ज्यादा सिक्रेशन कर दोगी, टेंस में रहोगी तो क्या तुम टोटली उसका पर फोकस कर रहे हो, नहीं क्या हुआ कैसे हो, ऐसे चिंता करोगे, टेंस आओगे। थिंकिंग या पढ़ाई में थिंकिंग में कोई टेंस नहीं होता है, फालतू बात में चिंता करना। तो टेंस आ जाएगा तो ये हार्मोन सिक्रेशन होगा, ज्यादा होगा तो हार्ट बीट बढ़ेगा, ठीक नहीं, एंड रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगा। अच्छा, तुम सपोज रोड में जा रहे हो, हठात तुम्हारे सामने एक्सीडेंट हुआ, और वो एक्सीडेंट तुमने कहीं जिंदगी में नहीं देखा, मरते वक्त तुम आदमी को देखा, तो तुम्हारा धड़कन बढ़ेगा ना बढ़ेगा? नहीं। तुम्हारे सामने हुआ एक्सीडेंट, तुम्हारे सामने हुआ, नो, तुम्हारे सामने, दैट सडनली एक्सीडेंट हैपेंड इन फ्रंट ऑफ योर आई, व्हाट विल हैपन? तुम्हारा धड़कन क्यों बढ़ रहा है? तुम्हारे साथ नहीं हुआ ना, तुम्हारे सामने हुआ, तुम्हारा धड़कन बढ़ेगा कि नहीं? अगर तुम्हारे सामने तो हुआ तो वो बाहर ना करे, लेकिन तुम्हारे सामने कोई ऐसे इंसिडेंट हुआ, तुम्हारा धड़कन नहीं बढ़ेगा? तुम आदमी को देखते हो मरते वक्त, आदमी मर गया, तो उस टाइम हमारा कैटेकोलामाइन सिक्रेशन होगा, एड्रेनालिन, हार्ट बीट बढ़ा देगा, रेस्पिरेशन रेट बढ़ा देगा, हमको बेचैनी आ जाएगा। जैसे तुमने बोला, वही इंटरव्यू का समय में एड्रेनालिन नॉरएड्रेनालिन सिक्रेशन होगा, तो डायरेक्ट तुम्हारा हार्ट बीट बढ़ेगा, रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगा। पिलो इरेक्शन कहते हैं, पिलो इरेक्शन मतलब गुजबम्स, डू यू नो गुजबम्स? दैट इज द पिलो इरेक्शन। लोमो गुड़ाक ठिया है पड़ो, हेयर स्ट्रेटेज हो, पर तुम कोई भूत पिक्चर देख रहे हो हॉल में, 7D पिक्चर, तुम्हारे सामने आके गला दबा रहा है। 7D आजकल तो पूरा पिक्चर 3D फ्रीडी हो गया, 7D आके 12D आ गया। नहीं, फॉरेन कंट्री में जैसे पिक्चर सामने आ जाता है, आ गया, इंडिया हो गया तो इंडिया में आ गया, LED ऐसे भी आ जाता है कि 7D टाइप का, HDR पर। तो वो HDR जो है 7D 12D आएगा, पुनः 18D कितना D आएगा उसका खोज खबर नहीं है। जैसे मोबाइल पर डे चेंज होता है, डेली मोबाइल चेंज होता है, आज 18 आएगा तब 828 आ जाता है, फिर 880 आता है। चलो छोड़ो उसको। मेरा कहने का उद्देश्य वही था कि एक बात में तुम्हारा जो गुजबम्स हो रहा है, भूत पिक्चर देख रहे हो या एक्सीडेंट हो गया, क्यों? कैटेकोलामाइन्स, सिक्रेशन ऑफ द कैटेकोलामाइन्स, दैट इज द एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन। और सबसे ज्यादा हार्ट बीट बढ़ाएगा, नर्वस करेगा, फोबिया करेगा, वो है एड्रेनालिन। इसलिए लोग को बोलते कि बिंदास रहा करो, घर में पापा में को वही समझाओ, टेंशन ना ले, क्योंकि टेंशन अगर लेगा तो बीपी बढ़ जाता है। ये एड्रेनालिन सब तो करता है, एड्रेनालिन होता है मुख्य उद्देश्य, उसको कोई समझ नहीं पाता है। टेंस में रहता है, वो सोचता है कि ठीक है हो जाएगा, टेंस में रहने में कोई एड्रेनालिन बढ़ता जाएगा। अगर ज्यादा बढ़ेगा तो फोबिया क्रिएट करेगा, हार्ट बीट बढ़ाएगा, रेस्पिरेशन रेट बढ़ा देगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ कंप्लीटेड एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है। थायराइड, पैराथायराइड,
बीपी बढ़ाएगा। हाँ, बीपी तो बढ़ाता है, अगर ज्यादा एड्रेनालिन होता है बीपी कम नहीं करेगा, बढ़ा देगा। बीपी बढ़ा देगा एड्रेनालिन। बोलते नहीं ए मेरा एड्रेनालिन सिक्रेशन नहीं करना, मेरा बीपी बढ़ रहा है, बीपी बढ़ा देगा। बीपी ज्यादा टेंस में रहने में बीपी घटेगा नहीं। हाँ, कुछ कुछ होता है लो बीपी, उसका भी फैक्टर्स जो है, लो बीपी क्यों होता है, लो बीपी टेंस में भी रहते हुए लो बीपी किस किसका लो बीपी होगा, तो लो बीपी में तो आदमी बच सकता है। घर में लेमन और नमक और सॉल्ट लगा के 1-2 गिलास पानी पियो, थोड़ा सा नमक ले लो, थोड़ा सा 1 चम्मच शुगर ले लो, एक लेम्बू लेमन। लो बीपी खराब नहीं है जे, किसका है क्या, लो बीपी खराब नहीं, लेकिन लेमन पानी। अब सॉल्ट लेना पड़ेगा आपको, सॉल्ट लीजिए। सॉल्ट सॉल्ट में इस थोड़ी बोल रहे सॉल्ट खाओ, जिस जो तुम्हारा डाइट में सॉल्ट ले लीजिए, और लेमन, और उसके साथ शुगर 1 चम्मच, और थोड़ा सा सॉल्ट, 1 गिलास पियो सुबह, देखो आप बीपी कंट्रोल हो जाएगा। उसके लिए मेडिसिन की जरूरत नहीं है, बीपी ऑटोमेटिकली आपका हाथ में कंट्रोल हो जाएगा। हाई बीपी खराब है ज़्यादा, हाई बीपी के लिए मेडिसिन लेना पड़ता है। मालभास 20, 80, 30, 40, 20, 40, 80, छोड़ो वो बीपी, हाई बीपी ज़्यादा खराब है, लो बीपी तुम्हारे हाथ में कंट्रोल हो जाएगा। सो थायराइड, सीक्रेट थायरोक्सिन हार्मोन, माइंड रेस्टोरेंट, गुड न्यूज, ये खराब, ये कंप्लीट होने वाला है, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। थायरोक्सिन, थायराइड ग्लैंड, थायरोक्सिन हार्मोन, एंड और एक आएगा टीसीटी, याद रखना 2 हार्मोन है, थायरो कैल्सिटोनिन, थायरो कैल्सिटोनिन हार्मोन। 2 हार्मोन आपको याद रखना पड़ेगा। थायराइड ग्लैंड से 2 हार्मोन आता है, एक होगा थायरोक्सिन T4 ना, टेट्रा आइडोथायरोनिन, T4 टेट्रा आइडो थायरोनाइन, 4 आयोडीन मोलिक्यूल रहता है, टेट्रा आइडोथायरोनिन। और एक टीसीटी, और सीटी भी लिख सकते हैं, और सीटी कैल्सिटोनिन, सीटी कैल्सिटोनिन। 2 हार्मोन, हाँ, थायराइड ग्लैंड से 2 हार्मोन आएगा। कितना हार्मोन, तो पहले थायरोक्सिन, फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन, it maintain water and electrolyte balance, water and electrolyte balance, water balance करो, electrolyte balance। is responsible for formation of blood, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ये ब्लड बनाता है, ये ब्लड बनाता है, बोला बोला था मैंने, रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस, it is a metabolic hormone, it metabolizes protein, carbohydrate and fat।
सुनिए, जितना मैंने अभी तुमको बताऊंगा कि मेटाबॉलिक हार्मोन, जैसे आपने बोला थायरोक्सिन, ग्रोथ हार्मोन, सुना है कि नहीं, कॉर्टिसोल, सबसे हाईएस्ट मेटाबॉलिज्म करेगा थायरोक्सिन। हाईएस्ट मेटाबॉलिज्म, सबसे ज्यादा मेटाबॉलिज्म करता है थायरोक्सिन। आजकल तुम सुन रहे हो कि नहीं, बोलते हैं ना मेरे को थायराइड हो गया, मेरे को डायबिटीज हो गया, ये तो कॉमन हो गया सब, जिसका मुंह में सुना डायबिटीज हो गया, मेरा थायराइड निकल गया। लेडीज लोग को देखना, तुम्हारा थायराइड है क्या? हाँ मेरा थायराइड थोड़ा सा है, ठीक नहीं? कैसे? सुनो, लिसन में, ये थायरोक्सिन क्या करेगा? मेटाबॉलिज्म, तुम्हारा बॉडी में सबसे ज्यादा मेटाबॉलिज्म थायरोक्सिन करेगा। अगर थायरोक्सिन कम हो गया तो मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, आदमी ग्रोथ हो नहीं पाएगा, उसको कहते हैं क्रेटिनिज्म। क्या कहते हैं? क्रेटिनिज्म। अगर थायरोक्सिन आ नहीं पाया तो गॉइटर, सुना है गॉइटर, गलगंड, घेंगा, घेंगा हिंदी में बोलते घेंगा, गॉइटर, गॉइटर, थायरोक्सिन कम होता है। अगर थायरोक्सिन कम होता है, सुसाइड थायराइटिस, मतलब आत्महत्या, दैट इज ए फैटल डिजीज। आम बॉडी रे कौन थायरोक्सिन, टोटाल थायरोक्सिन बंद हो गला माने तुम देह में आउ आयोडीन नहीं, तुम सॉल्ट लेना पड़ेगा, आयोडाइड सॉल्ट। जो तुम सॉल्ट ले रहे हो घर घर में यूज करते हो ना सॉल्ट, वो है सोडियम आयोडाइड। क्या कहते हैं? सोडियम आयोडाइड, वही सॉल्ट। तो तुम्हारा 3-4 बीमारी आपको याद रखना पड़ेगा, ये तो उसका फंक्शन है। वाटर बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ब्लड फॉर्मेशन करेगा, मेटाबॉलिक हार्मोन, मेटाबॉलाइजेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट फैट, ये इसका तो फंक्शन है। लेकिन थायरोक्सिन अगर कम होगा तो क्या डिजीज होगा? राइट डाउन। लो थायरोक्सिन और हाइपोथायरोक्सिन। अगर थायरोक्सिन कम होगा तो डिजीज का नाम लिख लीजिए, गॉइटर, गॉइटर, क्रेटिनिज्म, गॉल्स डिजीज, और माइक्सोडेमा, थायराइड सुसाइड डिजीज। थायराइड सुसाइड डिजीज और ऑटो इम्यून सुइसाइडाइटिस, और एक नाम भी है थायराइड सुइसाइड, हाशिमोतो डिजीज, हाशिमोतो डिजीज। याद रख लीजिए, ये चारों डिजीज आपको याद रखना पड़ेगा। गॉइटर, क्रेटिनिज्म, क्रेटिनिज्म मतलब स्टैंडर्ड ग्रोथ, गॉइटर तो स्वेलिंग ऑफ नेक, डू यू नो स्वेलिंग ऑफ नेक? स्वेलिंग ऑफ नेक गॉइटर होता है, स्वेलिंग ऑफ नेक। क्रेटिनिज्म मीन्स स्टंटेड ग्रोथ। एंड गॉल्स डिजीज मतलब पफी अपीयरेंस। तुम कोई लेडीज को देखोगे, बोलना, तुम बोलना कि तुम्हारा इतना मोटा क्यों हो गया, इतना, तुम तो 50 किलो था, अभी 80 किलो कैसे हो गया, 30 किलो बढ़ गया 3-4 महीने में। वो बोलेगा नहीं नहीं मेरे को थायराइड है, इससे स्वेलिंग हो गया। अच्छा, मुंह इतना बड़ा स्वेलिंग हो जाएगा, पेट बढ़ जाएगा, जैसे बोलेगा कि तुम बहुत मोटा हो गए। नो नो नो, दैट इज थायराइड। क्या है कि थायराइड, थायरोक्सिन कमी होने के बाद उसका पफी अपीयरेंस, स्वेलिंग हो जाएगा, बॉडी पूरा स्वेल होकर रहेगा, बॉडी पूरा स्वेल, मुंह पोर्शन पूरा स्वेलिंग होगा, है ना, थाई पोर्शन पूरा स्वेलिंग होगा, पैर स्वेलिंग होगा, सो इतना, सो स्वेलिंग हो जाएगा बॉडी, है ना। सो वो अलग है, वो एक ही लेग, नहीं नहीं वो उस टाइप है नहीं, मुंह बहुत, वो एलिफेंटेसिस में वो लेग स्वेलिंग होगा, जेनिटल ऑर्गन स्वेलिंग होगा, इसमें बॉडी स्वेलिंग होगा। लिसन मी,
इसमें बॉडी स्वेलिंग होगा, बॉडी, मुंह स्वेलिंग हो जाएगा, मुंह मुंह स्वेलिंग होगा, हाथ पैर स्वेलिंग होगा, पूरा बॉडी स्वेलिंग होगा, पैर ये पाद पाद वो स्वेलिंग होगा, वो तो लिम्स स्वेलिंग होगा, ये पूरा लिम्स एलिफेंडेसिस, वो ऊकरेरिया बैंक्रप्टी करता है, क्यूलेक्स मस्किटो उसका वेक्टर है। अच्छा, ज्यादा सिक्रेशन में डिजीज होगा, हाँ ज्यादा सिक्रेशन में भी, थायरोक्सिन अगर ज्यादा बढ़ जाएगा तो आईबॉल कम्स आउट फ्रॉम योर आई, ऐसे आंख तुम्हारा लटक के रहेगा। हाँ ओके, सो नेक्स्ट कम टू eyeball comes out from your eye, so लिख लिया ना, more secretion of thyroxine, more secretion of thyroxine और हाइपर ज्यादा होगा, एक्जोप्थाल्मिया, ज्यादा सिक्रेशन होगा तो एक्जोप्थाल्मिया, एक्जोप्थाल्मिक गॉइटर, एक्जोप्थाल्मिक goiter, eyeball comes out from the eye socket, comes out from eye socket। अच्छा मालूम है उसको कहते हैं ग्रेव्स डिजीज, बोलते नहीं आंख बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा, बोलते नहीं ग्रेव मार रहा है, ग्रेव पर्सनैलिटी, नो नो नो, ग्रेव मतलब आई बॉल बड़ा बड़ा हो जाएगा तो बोलना नहीं ग्रेव, वो उसीलिए उसका नाम है ग्रेव्स डिजीज, इट इज नोन एज ग्रेव्स डिजीज, उसको ग्रेव्स डिजीज कहते हैं। कौन सा डिजीज? ग्रेव्स डिजीज। नाउ वी शैल सी थायरोक्सिन, तो ये हो गया, थायरोक्सिन को T4 भी कहते हैं, टेट्राहाइड्रोथायरोनिन। थायरोक्सिन तुम्हारा बॉडी में आयोडीन सिंथेसिस करेगा, क्या करेगा? आयोडीन, क्या रख लो, आयोडीन इज रिक्वायर्ड टू सिंथेसाइज योर थायरोक्सिन सिंथेसिस। आयोडीन तुम क्यों लेते हो? थायरोक्सिन के लिए। थायरोक्सिन किससे प्रोडक्शन होगा? इसलिए तुम आयोडीन, आयोडीन कैसे लोगी? सॉल्ट में है। आयोडीन किस में है? सॉल्ट में, सोडियम आयोडाइड पर। आयोडीन जो है सॉल्ट में है, सोडियम आयोडाइड। क्यों सॉल्ट लेते हैं? थायरोक्सिन प्रोडक्शन के लिए। सॉल्ट क्यों लेते हैं? थायरोक्सिन प्रोडक्शन के लिए। क्यों? थायरोक्सिन प्रोडक्शन के लिए। थायरोक्सिन कैसे सिंथेसाइज होगा, इसलिए सॉल्ट पूछा जाएगा। व्हाई यू रिक्वायर द सॉल्ट टू सिंथेसाइज एड्रेनालिन ना थायरोक्सिन? थायरोक्सिन। सॉल्ट में सॉल्ट का कौन फॉर्म रहेगा? सोडियम आयोडाइड ना सोडियम सल्फेट? सोडियम आयोडाइड। आयोडीन हमको चाहिए, आयोडीन। नाउ कम टू पैराथायराइड। नेक्स्ट राइट डाउन पैराथायराइड। Good news for you, this is going to be completed now. पैराथायराइड कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन में मैंने दे दिया तो थोड़ा अभी भी आज भी क्वेश्चन दे दिया। पैराथायराइड सुनिए, मैं आपको, थायराइड तो एक ही है, थायराइड एक ही नेक पोर्शन में रहता है। मैं तुमको दिखा देता हूं, बिलो द ट्रैकिया, अरे बिलो द फेरिंग्स एबो द ट्रैकिया, यहां पर ये फेरिंग्स है, ये क्या है? ये ट्रैकिया है, ये बीच में रहेगा, यहां पर तुम्हारा वोकल कॉर्ड है, यहां पर। थायराइड देखो, ये फेरिंग्स है, ये ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया, ये फेरिंग्स, ये फेरिंग्स, ये ट्रैकिया, थायराइड, ये देखो थायराइड, ये थायराइड है। थायराइड इज ओनली वन ग्लैंड बट बाइलोब्ड। दिस इज द थायराइड ग्लैंड, थायराइड बट बाइलोब्ड।
बाइलोब, थायराइड बाइलोब, बट इट इज ए सिंगल ग्लैंड, এটা একটা সিঙ্গেল গ্ল্যান্ডে, এটা একটা সিঙ্গেল গ্ল্যান্ডে, সিঙ্গেল গ্ল্যান্ড, কিন্তু এটা বাইলোবটা। হ্যাঁ, ফ্যারিংস আর ট্রাকিয়া, ট্রাকিয়া মঝিরে আছে না, তাহলে ট্রাकिया ऊपर फेरिंग्स नीचे नीचे रहेगा ना, ये फेरिंग्स है, देखो ये ट्राकिया है, मझे रहेगा ना, बट दैट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द ट्राकिया एंड फेरिंग्स, बट फेरिंग्स एंड ट्राकिया। थायराइड ग्लैंड is located in between trachea, pharynx and trachea, pharynx and trachea। हाँ, ये मैंने क्यों ये डायग्राम किया, तो बोले सर वो नेक पोर्शन में लिख दे तो चलेगा। हाँ ठीक है, that is located at the neck portion, middle of the neck, middle of the neck, neck तो तले नहीं कि neck ऊपर नहीं, middle of the neck, that is located in the mid portion of the neck, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो इशू। और located at middle portion of neck, neck रा middle portion अच्छी, ठीक है। लेकिन एक थायराइड लोब में दो पैराथायराइड है, देखो दो पैराथायराइड, एक थायराइड लोब में दो पैराथायराइड, देखो दो पैराथायराइड, 1 2 1 2, दो पैराथायराइड ग्लैंड है। हाँ टोटल 4 पा, एक थायराइड ग्लैंड 4 पा, इसलिए तो मैंने डायग्राम को अभी किया जानबूझकर, क्योंकि तुम थायराइड भी देखो पैराथायराइड भी देखो। मैंने पहले डायग्राम अब एक्सप्लेनेशन करने के बाद क्यों डायग्राम बनाया, दोनों हो गया, थायराइड भी हो गया पैराथायराइड। तो पैराथायराइड देखो ना, पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, ये कौन सा ग्लैंड है, पैराथायराइड। कितना पैराथायराइड है, कितना 4, कितना थायराइड है 1, बट बाइलोब, थायराइड ग्लैंड कितना 1, बट बाइलोब, गोटे ग्लैंड किंतु लोभ हो दीटा, एटा गोटे ग्लैंड पा, लोभ है नहीं, एटा नेक एमि रहबो बाइलोब, एन रहबो बाइलोब है ना, गोटे ग्लैंड मन था। एटा पचारे केतरा थायराइड अछि, केतरा पैराथायराइड अछि, गोटे थायराइड, केतरा पैराथायराइड 4टा, थायराइड दीटा लोभ अछि, ओके देख लिया। आगे बढ़िया, ହେଇଗଲା। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रहा हूं, एक आया था, तुम्हारा बॉडी में ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो कि सेल्फली ऑटोनोमसली रेगुलेटेड ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। तुमको पता है पैराथायराइड, ये सॉरी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, ये सर नो, पिट्यूटरी सभी एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करेगा, ये सर नो बोलो ना, सभी एंडोक्राइन ग्लैंड, लेकिन पैराथायराइड को कंट्रोल के कोई नहीं करेगा। अच्छा तुम्हारा मन में सोच रहा है कि हाइपोथैलेमस नो, पिट्यूटरी नो, तुम सोच रहे नहीं वो थायराइड का अंदर है तो वो तो थायराइड का कंट्रोल करता होगा, नो, थायराइड भी नहीं, थायराइड भी पैराथायराइड को कंट्रोल नहीं करेगा। पैराथायराइड होची दिस इज द ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड दैट इज सेल्फली ऑटोनोमसली रेगुलेटेड, स्वयं चालित, निजे निजे को कंट्रोल करिवो। को ग्लैंड तब कंट्रोल करिवो ना, हाइपोथैलेमस करिवो
ना पिट्यूटरी करिवो ना थायराइड करिवो थायराइड ग्लैंड भितर थाई कि ना मध्य थायराइड दा कंट्रोल कर परिबोनी दिस इज द सेल्फली ऑटोनोमसली रेगुलेटेड ग्लैंड ओनली पाराथायराइड पिलांग मन रे तो सर थायराइड भितर तो अछि पाराथायराइड थायराइड कंट्रोल करथो ना ना नो सो राइट डाउन parathyroid is selfly autonomously निजे स्वयं चलित autonomously regulated endocrine gland no endocrine कोई endocrine gland any endocrine gland cannot regulate it पूछा जाएगा which is selfly autonomously regulated gland parathyroid पूछा जाएगा parathyroid is controlled by option A pituitary by option A hypothalamus option B pituitary option C thyroid option D selfly autonomously regulated थायराइड ग्लैंड तो वो पिट्यूटरी कंट्रोल करता है तो मैंने तो बोला ना पिट्यूटरी ग्लैंड सबको कंट्रोल करेगा एक्सेप्ट पैराथायराइड थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करेगा थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करेगा पैराथायराइड के को भीतर अछि थायराइड भीतर है पैराथायराइड थायराइड भीतर अछि बुझो जी नहीं पैराथायराइड के ही कंट्रोल करेनी इवन थायराइड भी कंट्रोल करेनी है ना पचार परा पैराथायराइड इज कंट्रोल्ड बाय ऑप्शन ए देव थायराइड ऑप्शन ए पिट्यूटरी ऑप्शन दी हाइपोथैलेमस ऑप्शन दी थायराइड ऑप्शन दी सेल्फ सर्विस नहीं कि अच्छा तुम बोलो मेरे को 90% बच्चे किसको मारेंगे थायराइड दीजिए पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस थायराइड सेल्फ कोटा मारिए थायराइड को मारिए हाँ ठीक पिट्यूटरी को मारिए समस्ते कहीं कहलो पिट्यूटरी इज द मास्टर ग्लैंड पा तुमने सीखा क्या पिट्यूटरी कंट्रोल ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड सीखा नहीं कि तुमको सर ने सिखाया पिट्यूटरी कंट्रोल ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड सर ने ये नहीं बताया कि सेल्फली ऑटोनोमसली रेगुलेटेड ग्लैंड दैट इज पैराथायराइड अभी सर ने बता दिया और सर ने नहीं बताया होगा तो हम किसको मारते हैं पिट्यूटरी कोई भी तो selfly autonomously regulated gland only one that is parathyroid that cannot be controlled by any other endocrine gland that may be whether it may be pituitary whether it may be hypothalamus भी pituitary भी even if thyroid भीतर भी अच्छी था thyroid भी control नहीं कर सकता है no that is selfly autonomously regulated gland okay so parathyroid secret parathyroid hormone कौन सा हार्मोन पैराथायराइड हार्मोन कोलिप खुद ही देखा था इसलिए नाम रख दिया कोलिप्स हार्मोन कोलिप देखी थिला ता ना अनुसार कोलिप रखिला कोलिप हार्मोन था अच्छा फंक्शन retain calcium and retain calcium and eliminate phosphorus ये कैल्शियम फास्फोरस का पर मेंटेन करेगा कैल्शियम ये तुमको पता था कि नहीं एल्डोस्टेरोन सोडियम को रखेगा एलिमिनेट करेगा पोटेशियम को ये कैल्शियम रखेगा कैल्शियम फास्फेट को निकाल देगा फास्फोरस या फास्फेट
So it metabolizes calcium and phosphate in our body। ये भी आंसर ठीक है। सुनिए, ये आउट बढ़िया कतरे कुछ बहुत बड़े इंपोर्टेंट। ये कैल्शियम को ब्लड में, सुनिए, ब्लड में कैल्शियम को ये बढ़ाएगा। किसमें बढ़ाएगा? ब्लड में, ठीक है। बोन में कम कर देगा, बोन में बोलो कम। इट इंक्रीज कैल्शियम लेवल in blood and decrease calcium level in bone। अच्छा, और एक बहुत बढ़िया बात अभी मैं बता रहा हूं। सुना है थायरोकैल्सिटोनिन कहां से आता है? टीसीटी, सिटी कैल्सिटोनिन हार्मोन, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन, ये कहां से आता है? अभी बताया था, दो हार्मोन, एक थायरोक्सिन था और एक टीसीटी था। ये टीसीटी के अगेंस्ट में काम करेगा। ये तो पारथ हार्मोन, देखो अभी बताओ ये स्टेटमेंट, पारथ हार्मोन वर्क एगेंस्ट टीसीटी एंटागोनिस्टिक। मेरे को बताओ, पारथ हार्मोन कैल्शियम को ब्लड में क्या करेगा? बढ़ाएगा या घटाएगा? पारथ हार्मोन कैल्शियम को ब्लड में बढ़ाएगा, बोन में घटाएगा। कैल्शियम को ब्लड में बढ़ेबो, इंक्रीज करिबो, बोन रे घटेबो। तो ठीक है, उसका अपोजिट बोल दो, अपोजिट टीसीटी का, टीसीटी का अपोजिट बोलो। वेरी गुड। टीसीटी का फंक्शन है, सुनाओ, ये हो गया ना, ये हो गया, ये हो गया पूरा कंप्लीट। देखो कैसे लिखोगे, पारथ हार्मोन के टीसीटी। पारथ हार्मोन कहां से सीक्रेट होगा? सीक्रेट फ्रॉम, सीक्रेट फ्रॉम, अरे कहां से सीक्रेट होगा? पारथ हार्मोन सीक्रेट कहां होगा? थायरोकैल्सिटोनिन सीक्रेट फ्रॉम, सीक्रेट फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। चलो ये हो गया। नेक्स्ट, इट इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड। तो ये यहां पर क्या लिखूं? बस ये डिक्रीज लिख दिया, चलो डिक्रीज लिख दिया। चलो तापरे इट डिक्रीज कैल्शियम इन बोन। तो ये क्या लिखूं? इंक्रीज कैल्शियम। तो पारथ हार्मोन एंड टीसीटी ये दोनों दोस्त है कि दुश्मन है? दुश्मन है। दोस्त तो एक ही था, एक होगा आड्रेनालिन नोरालिन और एक बताया था एलएच एफएसएच। दोस्त मतलब एक साथ में काम करना, है कि नहीं? हमारे दोस्त मतलब एक साथ में काम करना। ये तो अलग काम करते हैं, ये उसका विपरीत काम करेगा, ऑपोजिट, है कि नहीं? समझ आया? तो दोनों एंटागोनिस्टिक, बोथ आर एंटागोनिस्टिक, both are antagonistic, opposite, opposite, opposite काम करते हैं ना, ठीक है? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट
डिजीज देख लेंगे फिर उसका आगे बढ़ते। अच्छा पैराथर्मल सुनिए, पैराथर्मल अगर कम हो गया, बोलो पैराथर्मल कम हो गया तो ब्लड में कम हो जाएगा, पैराथर्मल ज्यादा हो गया, चलो पैराथर्मल ज्यादा हो गया तो क्या है, बोन में बढ़ जाएगा, ब्लड में कम हो जाएगा, हाँ या ना। अरे पैराथर्मल ज्यादा होगा तो ब्लड में बढ़ेगा, बोन रे कम ही हो। पैराथर्मल ज्यादा होगा तो क्या होगा, ब्लड में बढ़ जाएगा कि नहीं। पैराथर्मल ज्यादा होगा तो किस में बढ़ेगा, ब्लड में, ब्लड में बढ़ गया, बोन में कम हो जाएगा, तो क्या होगा, हो गया कंप्लीट। मोर पैराथर्मल means increase in blood but decrease in bone। तो क्या डिजीज होगा, बोन में कमी जीव ना, बढ़ीगला देखा कमिगला देखा, बोन रे कमिगला। ताहले शुनिच गोटे डिजीज ऑस्टियोपोरोसिस, सुन ऑस्टियो मान क्या, बोन, पोरोसिस मान क्या, पोर, बोन गुड़ा जाली जाली हो, कणा कणा हो जान, कॉज ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो मीन्स क्या, बोन, पोर फॉर्मेशन इन बोन, पोर इन बोन, पोर हो। अच्छा लेस पैराथर्मल, मोर पैराथर्मल माने मोर कैल्शियम, मन रखता, मोर पैराथर्मल माने मोर कैल्शियम, मोर पैराथर्मल माने क्या, मोर कैल्शियम। लेस पैराथर्मल, लेस कैल्शियम, लेस पैराथर्मल माने लेस कैल्शियम, लेस पैराथर्मल में क्या है, लेस, तो लेस कैल्शियम लेस पैराथर्मल माने ब्लड रे कमी गला, ब्लड रे कमी गला, ब्लड कम माने क्या वाला, कम हो जो हो जाएगा वो दिखाई देगा, बढ़ने में नहीं, ब्लड में कम हो जाएगा। तो लेस पैराथर्मल, लेस इन ब्लड एंड मोर इन बोन, तो डिजीज तो होगा ना, ब्लड में कम होगा मतलब क्या है, मसल में कम होगा। अरे ब्लड में कम हुआ मतलब मसल को जा रहा है ना, मसल में कम हुआ कि नहीं, कैल्शियम मसल में भी कम हो जाएगा, तो मसल तो कैल्शियम जब तक नहीं जाएगा तो कैसे मसल कंट्रैक्शन होगा, बताओ। मसल कंट्रैक्शन के लिए कैल्शियम जरूरी ना, जरूरी नहीं है, जरूरी, कैल्शियम इज वेरी एसेंशियल। अरे ब्लड में कैल्शियम कम है तो मसल में कम हो जाएगा, ब्लड में कम हो तो हाँ मसल में भी कम है, ब्लड को गया मतलब मसल को गया, ब्लड को जा नहीं पाए तो मसल कैसे जाएगा, ब्लड होकर जाएगा ना कैल्शियम मसल को, अरे ब्लड होके ही मसल को जाएगा ना, तो मसल में अगर कैल्शियम कम हो जाएगा तो मसल कंट्रैक्शन होने पाएगा, स्पाज्म हो जाएगा, कौन हो, स्पाज्म एमती सब मसल गुड़ा अकड़न बेक भांगी पड़ते, स्पाज्म मनुष्य मरज, जिसको हम कहते हैं हमारे लैंग्वेज में धनुष टंकार, शुणिच टिटानी, आखि गुड़ा तराटी मसल गुड़ा सब भांगी एमती स्पाज्म हो, कंट्राक्शन बंद हो, मनुष्य मरज, रिगर मर्टिज हो, रिगर मर्टिज मनुष्य मरीगला पर देख कि स्टिफनेस आंगुठी पूरा सीधा सीधा हो, देखना बड़ा कि फुलिकना रहा, रिगर मर्टिज हो, आंगुठी स्ट्रेट हो। एठे यदि तमर लेस कैल्शियम आसला ताने बोन को मसल को जीवन, मसल को जीवन, दैट कॉज टिटानी, 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 टिटानस, यू नो टिटानस, हाँ टिटानस, टिटानी, टिटानी आम तो टिटानी कुछ टिटानस भी कह तमर मनकर तुम लुहा खिल जो बॉडी में पशि जाऊँगी गोटे 20 वर्ष बा 30 वर्ष जंक लुहाटे तुम एत बड़ लुहा खिलटे तुम गोड़ तले पशिगला एत पशि जाइए तुम कौन काढ़ी रखीदेव सांगे सांगे एटी लगे दो कहीं
तुम खाली पाद रोच जेन आम खाली पाद बुलुचे ये गोटे चपल पिंधा भल पादे कि बाथरूम जाऊँ खाली पाद के घरे कि बाहर कि जन गाँ गहली गोबर रे काम करुच्ची गाई गोबर पशिगला ता मलमूत्र सांगे सांगे टीटानी हो टीटानी है 24 घंटा डेथ तुम 1000 कोटी खर्च कर बंची पार सांगे आम डर मारे कहीं एटी बुझे काले कड़े बाहर बुलूचे कत कौन टीटानी बैक्टेरिया क्लोस्ट्रिडियम टीटानी बैक्टेरिया भर पशिज तेणु सेमती जब तुम बॉडी भी कैल्शियमटा कमीगला पूरा सांगे सांगे टीटानस हो टीटानी कहती से स्पाज्म हो स्पाज्म मैंने मसल कंट्राक्शन हो पार ओके माय डियर स्टूडेंट्स नाउ आउ टिके खाली जस्ट पानक्रियास रहीगला टिके सहित टिके टाइम अच्छी हम पाखे सो लास्ट स्टेज नाउ कमिंग टू पानक्रियास पानक्रियास में गोटे सेल्स था आइलेट्स नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा बुधवार को वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगा ठीक है क्लियर तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बाद फिर हमारा सेल बायोलॉजी फिर फास्ट आ जाएगी बॉटनी सेल बायोलॉजी ठीक है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस उसका मेन सेल देखना बीटा सेल एंड अल्फा सेल सुना होगा बीटा सेल से इंसुलिन आता है मेन सेल इंसुलिन हार्मोन अल्फा सेल से ग्लूकागन हार्मोन याद रख लीजिए इंसुलिन हार्मोन अगर इंसुलिन हार्मोन कम होता है तो डायबिटीज होता है तो ये ग्लूकोज को हमेशा कम करेगा ग्लूकोज को बढ़ने नहीं देगा बढ़ेगा तो फिर डायबिटीज हो जाएगा ना हाँ ग्लूकोज और बढ़ जाएगा तो डायबिटीज होगा इसलिए इंसुलिन अगर कम हो गया तो ग्लूकोज बढ़ जाएगा तो लिखो इंसुलिन डिक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन आवर बॉडी इसलिए उसको कहते हैं हाइपोग्लाइकेमिक हार्मोन क्या कहते हैं हाइपोग्लाइकेमिक ग्लूकागन क्या करेगा ग्लूकागन क्या करेगा इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन आवर बॉडी इसलिए उसको कहते हैं हाइपरग्लाइकेमिक हाइपरग्लाइकेमिक मीन्स ग्लूकागन ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा है ग्लूकागन इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल तो हाइपरग्लाइकेमिक अगर बोलते हैं तो ग्लूकागन क्लिक करना मैच कलम हाइपरग्लाइकेमिक ग्लूकागन ग्लूकोज लेवल को हमेशा बढ़ाएगा नाम तो ग्लूकागन ना नाम ग्लूकागन पा ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा है इसलिए नाम रखा गया ग्लूकागन हाइपरग्लाइकेमिक हाइपर मीन्स मोर ग्लूकागन इंसुलिन हमेशा ग्लूकोज को कम करेगा इसलिए उसका नाम रखा गया हाइपोग्लाइकेमिक हार्मोन हाइपो मीन्स ग्लूकोज लेवल को कम करेगा तो हाइपोग्लाइकेमिक तो किसके साथ मैच होगा इंसुलिन वेरी गुड हाइपरग्लाइकेमिक वेरी गुड अच्छा इंसुलिन कौन सा सेल से आता है अल्फा ना बीटा बीटा ग्लूकागन कौन सा सेल से आएगा ये सब पानक्रियाज का सेल्स है पानक्रियाज का मेन सेल्स का नाम क्या है मेन सेल्स का नाम बताओ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस अच्छा मेरा बात और एक क्वेश्चन भी है इंसुलिन कमी से कौन सा बीमारी होगा डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन डायबिटीज इंसिपिडस ना डायबिटीज मेलिटस यस डायबिटीज राइट अच्छा इंसुलिन का कमी से डायबिटीज मेलिटस हुआ
अभी अभी तुम बोल रहे थे डायबिटीज इंसिपिडस, कोई बोल रहा था, कौन सा कमी से? डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच हार्मोन दैट कॉज द डायबिटीज इंसिपिडस? डायबिटीज इंसिपिडस याद करो, ऑप्शन दे रहा हूं दो, ऑक्सोसिन, भासोप्रेसिन, राइट, भासोप्रेसिन एंटी डायबिटिक हार्मोन, उसका कमी से। लिसन मी, डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज मेलिटस, डिफरेंस क्या है? बार बार दोनों का फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा, लेकिन इंसिपिडस में बहुत ज्यादा, 1 घंटा में आदमी 10 बार जा सकता है, 20 बार जा सकता है, 30 बार पेशाब जा सकता है। जिसको डायबिटीज होता है वो तो बार बार पेशाब जाएगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। दोनों डायबिटीज होगा, दोनों को थर्स्टी लगेगा, प्यास लगेगा, दोनों को भूख भी लगेगा। लेकिन डायबिटीज मेलिटस में शुगर आएगा, इंसिपिडस में वाटर ज्यादा आएगा, इसमें वाटर आएगा, इसमें वाटर आएगा, लेकिन इंसिपिडस जो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, मोर वाटर इन द यूरिन, यूरिनरी बेस वाटर रेशियो, ये है डिफरेंस, ठीक है। डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिडस में डिफरेंस वही है। डायबिटीज इंसिपिडस टेक्स प्लेस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एडीएस, डायबिटीज मेलिटस टेक्स प्लेस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन जब डायबिटीज से होता है तो इंसुलिन का कमी से तुमको डायबिटीज हुआ, दैट इज डायबिटीज मेलिटस। तुम बोल रहे कि मेरे को डायबिटीज इंसिपिडस हुआ है, तो एडीएस का कमी से ना, तो फिर डिफरेंस क्या रहा? एडीएस में भी वाटर आ रहा है, इंसुलिन मेलिटस भी वाटर आ रहा है, लेकिन मेलिटस में शुगर आएगा। डायबिटीज मेलिटस जिसको कहते हैं शुगर बेरी, इसमें यूरिन में शुगर आएगा, जहां पर वो यूरिन करेगा चिट्टी लग जाएगा, जंदा पिंपड़ी सो लग जाए यूरिन रे। डायबिटीज मेलिटस रे शुगर, इसमें मालूम है ग्लाइकोसूरिया कहते हैं उसको, शुगर आएगा, ग्लूकोज आएगा, लेकिन इंसिपिडस में ग्लूकोज नहीं आएगा, खाली वाटर आएगा। जैसे हम चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, एक बार 10 बार, कभी देखना घर में अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति, पापा मम्मी अगर चाय पी लोगे, तुम भी एक ट्रायल करो ना, 3-4 कप कॉफी पी लोगे तो बार बार पेशाब आएगा, उसको हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस हमेशा वो डायबिटीज इंसिपिडस है कि एडीएस अगर बंद हो गया, हम जैसे चाय कॉफी पी लेते हैं एक बार 5-7 कप, वो बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन गया, तो मेरे को डायबिटीज इंसिपिडस हो गया क्या? उसको हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। लेकिन मेलिटस जो है एक बीमारी है, इंसिपिडस भी एक बीमारी है, मेलिटस तो सांघातिक बीमारी है, इसमें इंसुलिन का कमी हो गया, इंसुलिन लेना पड़ेगा। इंसिपिडस में क्या लेना पड़ेगा? कुछ लेना नहीं पड़ेगा, इंसिपिडस में कुछ लेना, तुम चाय कॉफी छोड़ दो, हो जाएगा तुम्हारा बराबर। चाय कॉफी छोड़ दो, चाय तुम 8-10 कप, कौन बोल रहा है कॉफी 8-10 कप, कौन बोल रहा है? डायबिटीज इंसिपिडस होगा जब तुम चाय कॉफी पियोगे, कैफीन जाएगा, टैनिन जाएगा, अल्कोहल, ये एडीएच को बंद कर देगा। एडीएच बंद हो गया तो वो इंसिपिडस वाटर ऑब्जर्व होने पेगा, बार बार यूरिन लगेगा, तो इसमें क्या आएगा? तुम्हारा आयरन सब चला जाएगा बॉडी से, और पानी कम हो जाएगा, इसीलिए वो दुखेगा, हाथ पैर सब दुखता है। डायबिटीज इंसिपिडस उसको रेगुलेट तुम्हारे हाथ में, जैसे हम एक दिन 2-3-4 कप कॉफी पी लेते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस होता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, दैट इज नॉट ए, वो तो हमारा तक का कंट्रोल है, चाय कॉफी बंद कर दो, हो जाएगा फिर नॉर्मल। लेकिन मेलिटस जो है वो आदत बन गया, मेलिटस मतलब इंसुलिन लेना पड़ेगा, इंसुलिन। इंसिपिडस में क्या लेना पड़ेगा? कुछ लेना नहीं पड़ेगा। तुम जैसे कंफ्यूजन होता है, डायबिटीज इंसिपिडस होता है एडीएच का कमी से, मेलिटस होता है इंसुलिन का कमी से, लेकिन इंसुलिन लेना पड़ेगा तुमको, डायबिटीज मेलिटस है। इंसिपिडस में कौन लेना पड़ेगा? एडीएच नो, कौन सा? कोई बोल रहा है एडीएच लेना पड़ेगा। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द हार्मोन। सो टुडे योर टॉपिक इज कंप्लीटेड। Next topic we will start the human reproduction and reproductive health. From next class we will start, and I will give you the DPP I have given today. Next time फिर हम human reproduction का DPP दे देंगे। एग्जामिनेशन में तुम्हारा नहीं, एग्जामिनेशन में